So till last lecture we had started with error handling, and we had studied about the difference between errors and the exceptions. So errors are of two types, logical and syntactical error. Then we had studied about exceptions and how they are different from the error. फिर हमने इसके बारे में देखा था कि how to catch the exceptions in our program, that we can use try block and as well as catch block. So in try we have to use throw keyword to throw the exception that we have got, and then that exception will be received by, or it will be caught by the catch block. फिर इस catch block में हम एक solution भी दे देते हैं, ठीक है. तो जो भी हमारा problematic code रहेगा, that will keeping in the try block. जो हमें लगता है कि that this particular set of lines of code can cause some exception, so we'll be putting that code in the try block, ठीक है. जैसे हमने पहले ये एग्जाम्पल पिछली बार भी जैसे हमने डिस्कस किया था, that if I am dividing a by b, right, if I'm doing this calculation a divided by b, and this a has to be input by the user and b also has to be input by the user, and if user enters b as 0, then this program will give an exception. Then to handle this exception, I will be using this code if b is equal to 0. अगर b 0 नहीं है तब तो ये directly क्या होगा, divide हो जाएगा, and अगर if b is equal to 0, then we will be throwing the exception. और हमने ये देखा था कि throw keyword जहाँ हमारे पास में आता है, साथ के साथ it will look for the catch block, right? So the things that we have to keep in mind is that कि जहाँ पर भी मेरे पास में एक try block होगा, yes, एक try block होगा, now it is in main function, okay, try block होगा तो साथ के साथ it will be followed by the catch block also, ठीक है. यहाँ try block में हम कौन सा कोड रखेंगे, जो भी हमारा कोई exception problematic कोड है, right, then catch में क्या होगा, हमारे पास में solution होगा, fine. ओके, try में हमारे पास में एक throw कीवर्ड भी होगा, so it will be throwing this exception that will be caught by the catch block. Okay, so this we have studied. Okay, now what we have to do, अब जो ये catch है, catch में let us suppose I have int I, so here I can write cout integer exception caught. ओके, ऐसे ही मेरे पास में एक हमारे पास में करेक्टर वाला भी हो सकता है, एक ऐसा कैच ब्लॉक जो कि क्या है, दैट इज receiving the information, the character information. So there I can write that char information your या फिर char exception is caught. Okay, then next I can use double and I can write double exception is caught, right? ये हम एक ही try के लिए use कर सकते हैं, right? There can be multiple catch blocks in my program. अगर मैं एक try block लेती हूँ and then I am using 1 minute, so try has to be followed by catch block. Okay, तो try के अंदर अब anyways I'll be throwing some exception. Okay, so let us suppose I'm using 0, okay, exception, and I'm throwing this exception. Okay, so now this has to be, all this code has to be in int main. Okay, तो ये मैंने यहाँ लिखा and यहाँ मैंने इसको close नीचे कर दिया, ठीक है. So the int main has got closed, और ऊपर से हम ये वाली lines ले लेते हैं hash include, और fine. So this is my program, इसको मैं सेव कर देती हूँ. So for one try, there is only one try block. I can use multiple catch blocks also. अच्छा, ये हम क्यों यूज करते हैं, कि क्यों हमने ऐसे 3 को यहाँ रिप्रेजेंट किया है. There can be thousands lines of code in your program, और जहाँ आपको लगता है कि there is some problem in the code, or there are some lines which some exception can occur, there you can throw multiple values, ठीक है. अब एक try में मल्टीपल थ्रो भी हो सकता. पहले हम इस कैच के बारे में बात कर लेते हैं.
So whenever I'm throwing this 0, so this exception, the type of the exception that is thrown by this throw keyword will be now compared with the data that is being caught or that is being received by the catch block. ठीक है, तो पहले अब ये मैच होगा, 0 will be matched with int I. इसमें हमारी कोई भी implicit typecasting नहीं होती है, right? तो अगर मेरे पास में ये वाला कैच ब्लॉक नहीं होता है, जैसे मैं इसको निकाल देती हूँ, तो अगर मेरे पास में ये वाला कैच ब्लॉक नहीं है और ये वाला भी चलो नहीं, इसको भी मैं काट देती हूँ, एंड देन आई से कि यहाँ मेरे पास में यहाँ करेक्टर I, you know, if I'm throwing 0 and this char I kind of that is the information that is retrieved or that is received by the catch block, तो यहाँ पर ये हमारे पास में एरर दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या चाहिए, हमें हमारे पास में यहाँ पर इसका ही इंटीजर डेटा टाइप का चाहिए। सी दिस, यू कैन सी यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई है, चाहे आपने थ्रो जरूर किया है 0 को, बट दैट एक्सेप्शन हैज नॉट बीन हैंडल्ड एंड देयर अ मैसेज कम टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर throwing an instance of int, right? And this application has requested the runtime to terminate it in unusual way, right? So what we have to do, we have to create one catch that that is having, that is receiving what kind of information, that is thrown by the throw keyword in the try block, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में अगर मेरे पास में एक यहाँ मैंने करेक्टर लिख लिया है, तो इसमें कैर एक्सेप्शन मैं यहाँ इधर लिख रही हूँ, ओके। तो दूसरा मेरे पास में है, फॉर वन पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक आई कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स ऑल्सो। अगर आपको कहीं पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ data will be caught by the exception, then you write only one catch block और फिर आप उसके अंदर क्या करिए, 3 dots दे दीजिए। So this kind of catch block can retrieve any kind of exception. So whether you are throwing 0 or you are throwing a character A, ठीक है, कोई भी एक करेक्टर, या जैसे आप you are throwing any double value 1.1, then this type of catch block will receive any kind of exception and it will give you the solution। जो आपने यहाँ पर इसमें solution लिखा है, वो ये solution यहाँ पर catch block क्या है वो दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक आगे प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, एक और चीज है आपके जो मुझे बतानी है कि लेट अस सपोज, अब मैंने इसको तो चलो इसको मैं रन कर देती हूँ। अब एक और चीज देखिए, जब भी आपके पास में ट्राई ब्लॉक आएगा, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द कैच ब्लॉक, ओके, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द कैच ब्लॉक। और इन दोनों के बीच में और कोई लाइन नहीं आएगी। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ एक सी आउट लिख देती हूँ, एक मैसेज, आई एम इन बिटवीन ट्राई एंड कैच, ओके। यहाँ मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन आई एम एग्जीक्यूटिंग। तो अभी क्या होगा आपका, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, this will give you an error. See this, in function main expected in this line number 8, expected catch before C out. So it cannot no line can come in between try and catch, fine। यहाँ पर हमें इसको भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज ट्राई के बाद इमीडिएटली क्या आना चाहिए, कैच आना चाहिए। तो अब मैंने अगर इसको हटा दिया है, देन दिस विल वर्क, ओके। आपने यहाँ पर थ्रो 1.1 किया है और हमने क्या सीखा है, that this is the catch block that can retrieve any kind of exception। मल्टीपल आप कैच ब्लॉक्स की जगह एक ही चाहे ऐसा कैच ब्लॉक लगा दीजिए, then this will also work, ठीक है। अब जब ये रन होगा, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट, ओके। चलो आ गया इसका आंसर, int exception caught, ओके। लेट अस नाउ मेक अनदर प्रोग्राम। मेरे पास में int main, चलो इसमें मैंने ट्राई किया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक void, I am creating one function test नाम का, ठीक है, जिसके अंदर एक int x नाम का argument है। So I'll be writing some definition for this test function, okay। So rather than writing this try and catch in main function, हाँ ये नीचे है, ठीक है, इसका
ब्रैकेट, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग ट्राई हियर, ओके। तो मैं क्या करती हूँ कि अब ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या करती हूँ, if this x is equal to 1, then what happens, then let us suppose I am throwing one value, okay, so I write here throw x, this is integer, right, क्योंकि x जो है ऊपर integer है, okay, then I write if x equal to 0, अगर ये 0 है तो क्या आप थ्रो करिए, then you throw x as जो आपका जो एक वेक्टर की फॉर्म में है, right, then if you write if x equal to -1, okay, then you throw 1.1, okay, so this is the values that are being thrown in try, okay। चलो अब क्या है, अब try block has to be followed by catch block, वो हमने अभी पढ़ा है। तो catch में अगर मेरे पास में डिफरेंट यहाँ पर मैं ले रही हूँ पहले int, यहाँ मैं m ले लेती हूँ, चलो कैच ब्लॉक में पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर सी आउट एक्सेप्शन कॉट, तो ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, एक करेक्टर के लिए यहाँ पर बना देती हूँ एक अपना कैच ब्लॉक, ओके, तो यहाँ मैंने डबल के लिए बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ कैर, यहाँ मैं लिखती हूँ डबल, ओके। यहाँ मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉक कहाँ पर बनाया है, मैंने एक फंक्शन के अंदर बनाया है, सो दिस इज द फंक्शन जिसका नाम टेस्ट है, ओके। तो आई कैन कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन, यस, I can call this test function from main. So what I'm doing, I'm writing this test1, okay, तो पहली वैल्यू मेरी 1 है, तो मैंने अभी यहाँ एज आर्गुमेंट 1 पास किया है, then I am writing test0, I am putting argument as 0, then I am writing test -1 जो हमने लास्ट एक वैल्यू ली थी, ठीक है, और यहाँ मैं लिखती हूँ रिटर्न 0, और फिर ये मेन हमारा बंद हो गया, ओके। तो अब क्या होगा हमारे, तब तक मैं इसको पहले एग्जीक्यूट भी कर देती हूँ, नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम। सो यस साहिल, यस साहिल, मैम आई हैड अ डाउट। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर हम लाइक एक इंटीजर थ्रो करते हैं, हाँ तो उसके लिए अगर हम कैच करने के लिए मल्टीपल इंटीजर एक्सेप्टिंग करने वाली ब्लॉक्स हम बना दें, तो मैम बट हम देयर शुड बी स्पेसिफाई ओनली कैसे वन करते हैं? ब्लॉक, वन कैच ब्लॉक, देयर गिव यू एरर। तो मैम एक ट्राई ब्लॉक में मतलब हम सिर्फ 4 जैसे डेटा टाइप्स थ्रो कर सकते हैं ना, सिर्फ एक, हाँ मतलब हाँ जैसे मर्जी कर दो। लाइक एक ट्राई ब्लॉक में हम सिर्फ इंट थ्रो कर सकते हैं, कैर थ्रो कर सकते हैं, स्ट्रिंग और डबल थ्रो कर हाँ सकते हैं ना? आपका ये वाला मैं इस एग्जांपल के बाद करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, हमने क्या किया था, एक मिनट, यस, तो व्हाट हैपेंस हियर, मैंने क्या किया, मेन के अंदर मैंने अभी ये test1 को कॉल किया, सो test1 इज द फंक्शन, ओके। तो test1 में हमने क्या किया है, I am giving one argument, one as the argument, so this one will go to okay, and this x अभी value कितनी है, 1 है, so 1 will be compared with 1, okay, so when this is true then you throw x, बाकी इसमें और तो नहीं गया है आगे, तो यहाँ क्या हुआ, x को ही आप थ्रो कर दीजिए, नाउ x इज द इंटीजर वैल्यू, जो हमने किया x इज द इंटीजर वैल्यू, तो जब भी थ्रो यहाँ पर काम करेगा इट विल लुक फॉर द कैच ब्लॉक, ओके। सो यहाँ क्या है, x को थ्रो किया तो आपका क्या यहाँ पर कैच हुआ, इंट एक्सेप्शन कॉट, राइट, इंटीजर एक्सेप्शन आपकी यहाँ पर कैच हुई है, एंड देन व्हाट विल गेट प्रिंटेड, इंट एक्सेप्शन कॉट, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर ये फंक्शन खत्म यहाँ पर, एंड देन व्हाट हैपेंस अगेन द कंट्रोल विल गो टू द मेन फंक्शन, ठीक है, जैसे हम पहले फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे। नाउ अगेन व्हाट हैपेंस, टेस्ट 0,
So again you have called the function test and what argument you are giving, that is 0. तो 0 में क्या होगा आपका, यहाँ पर 0 जाएगा. Then 0 is equal to 1, no it is false. Then 0 is equal to 0, yes it is true. Then यहाँ पर क्या है, एक character, you are throwing one character value. Okay, then this character will be caught by this catch block. ठीक है, और उसमें क्या आएगा, char exception caught. और क्या है आपका प्रोग्राम जो है, यहाँ एक फंक्शन यहाँ खत्म हुआ आपका. And then what happens, again the control will go to the main function. Then what happens, test में -1 आपने आर्गुमेंट दिया है, so x becomes -1. Okay, so -1 is equal to 1, no. -1 is equal to 0, no. -1 is equal to -1, yes it is true. Then you throw this double value 1.1. Okay, then what happens, now it will be caught by this catch block, last wala catch block, and then double exception caught will get printed and again control will go to the main function, right? So इसके कारण आपका ये क्या प्रिंट हुआ है, int exception caught, char exception caught and double exception caught. ठीक है, ओके. तो आप क्या कह रहे थे यहाँ पर कि अगर इंटीजर 2 हो, मैं क्या करती हूँ यहाँ 2 लिख देती हूँ, 2 इंटीजर के मैंने यहाँ लिख दिए हैं. एंड देन आई एम अगेन कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, देन so till then it is getting executed. I will write another program. हो गया इसमें, देखते हैं कौन सा वाला फिर प्रिंट होगा. नहीं, see again it is throwing one error. ठीक है, yes or no साहिल, I hope you are watching this. ठीक है, so अभी क्या है, it you have to write only one specific block for one kind of exception that is being thrown by the throw keyword in the try block. ठीक है, otherwise it will again terminate in unusual manner like this int exception called terminate called after throwing an instance of char. ठीक है, तो इसको आप 1 मिनट साइड करते हैं. हाँ, तो मैम कोई मतलब सिंटेक्स या कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि मतलब हम स्पेसिफाई कर सके कि कौन सा कैच ब्लॉक हमने चलवाना है? कौन सा कैच, वो तो डिपेंड करेगा ना. देखो ये जो मैं ऐसा कोई सिनेरियो आपको बता रही हूँ, सो दैट हैज टू हैपन इन अ प्रोग्राम दैट इज हैविंग गुड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड. ये ऐसा नहीं है कि इसमें ही आपने डायरेक्टली ऐसे कर दिया. तो ये जो आपको ये इतना जैसे बताया जा रहा है, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ट्राई कैसे चलता है, थ्रो आपने ऐसे लगा दिया, कुछ थ्रो किया आपने वैल्यू, तो इसको किसी ने कैच कर लिया. So this kind of catch block is required for this kind of value if it is thrown from the try block, right? So otherwise तो आपको यहाँ पर different catch blocks ही बनाने पड़ेंगे. अगर आप एक ही थ्रो डाल रहे हो तो आप यहाँ पर एक ही यहाँ कैच यूज कर लीजिए. अगर आप डिफरेंट, अगर आपको नहीं पता चलता है कि आप so many multiple kinds of values are being thrown and let us suppose if this x is input by the user, यहाँ तो हमने ही दिया है ना input, this is input by the user, फिर हमें तो पता ही नहीं, तो डायरेक्टली आप वो 3 डॉट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो. ठीक है, ओके. समझ में आई या आपका और क्या क्वेश्चन है, बताओ. नहीं मैम, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था. ठीक है, यस. अब हम नेक्स्ट करते हैं एक और, इसी को मैं थोड़ा चेंज करती हूँ या इसको थोड़ा दूसरे उसमें बना देती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा है. So what I'm going to do now, int main, पहले हमने टेस्ट फंक्शन बनाया था ना. What I'm doing here, I'm writing try block here in main. Okay, तो try block मैंने यहाँ लिखा है, इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ये जो टेस्ट फंक्शन जो मैंने बनाया था. एंड हेयर आई एम गिविंग दिस टेस्ट 0, इसी में ले लेती हूँ मैं टेस्ट. हाँ ठीक है, टेस्ट 0 एंड टेस्ट. ठीक है, ये भी मैं ले लेती हूँ इसके अंदर. टेस्ट 0 को कॉल किया, फिर उसके बाद में टेस्ट
वन को पहले कॉल कर लेते हैं, test1, test0 एंड देन test-1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में ट्राई ब्लॉक। अभी तक हमने ये देखा है कि हम एक जैसे इस सेल में हमने देखा था कि फंक्शन मेन में कॉल किया जा रहा है एक फंक्शन टेस्ट नाम का, एंड दैट टेस्ट फंक्शन इज हैविंग द ट्राई ब्लॉक एंड द कैच ब्लॉक, राइट, ठीक है। अब जहां ट्राई होगा वहां पर आपके पास में कैच ब्लॉक होगा, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे जहां मैंने ट्राई बनाया है यहाँ इस मेन फंक्शन में अपने प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम में, वहीं पर मैं एक कैच ब्लॉक बनाती हूँ एंड देन आई एम सेइंग इंट एक्स, और फिर मैं यहाँ पर इसका ये ब्लॉक बना के इसमें मैं प्रिंट कर देती हूँ दैट एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, ठीक है, हैंडल्ड BLED, चलो ठीक है, ओके। तो अब क्या है, जहां पर आपका ट्राई है वहीं पर कैच ब्लॉक होगा, बट थ्रो कैन बी एनीवेयर, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है, अब ये टेस्ट फंक्शन कहाँ है, ये तो ट्राई के अंदर है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन वॉइड वन टेस्ट फंक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास में ये इंट एक्स आर्ग्यूमेंट लेगा, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग टेकिंग आर्ग्यूमेंट हियर, और यहाँ इसका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट, इसमें एक और फंक्शन ऐड करूंगी। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले जो भी मैंने कंडीशन लिया था, अब मैं क्या करती हूँ, इफ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगी, अगर ये x जो है दैट इज इनपुट बाय द यूजर, यहाँ जो आर्गुमेंट दिया है, इफ इट इज इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपेंस, आप एक काम करिए, आप एक abc फंक्शन को कॉल कर दीजिए, ठीक है। अब एबीसी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट करती हूँ कि डू नॉट कॉल एबीसी फंक्शन, ठीक है। ये मैंने ऐसे एक मैसेज सब इसमें लिख दिया, तो यहाँ ये टेस्ट जो है ये फंक्शन यहाँ खत्म हो गया, राइट। नाउ आई हैव टू क्रिएट एबीसी फंक्शन, तो मैं इसके ऊपर यहाँ एबीसी फंक्शन बना रही हूँ, एबीसी, राइट। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें आई एम थ्रोइंग वन वैल्यू थ्रो 0, so I am throwing one exception here and that is thrown in ABC function. I am repeating what I have done. यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ। What I am doing here, in main I have try and catch blocks. Yes, in try I am calling one function. अलग अलग मैं मतलब सेम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ by giving different arguments. So what is happening in this test function definition, I am calling another function, right? तो उस आगे फंक्शन में थ्रो है। देखो वैसे तो क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जब भी एक ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका कंट्रोल आ गया है आपके प्रोग्राम का, सो इट विल लुक फॉर द थ्रो कीवर्ड हियर, यस, एंड जब भी थ्रो आया तो इट विल लुक फॉर द कैच ब्लॉक, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले क्या है, व्हेन यहाँ मेन के अंदर जब मेरे पास में मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, test function is called, 1 is the argument that is given, so control will go to this test function and 1 is the x is equal to 1, यहाँ पर as argument हमने यहाँ दिया है, right? तो that 1 is equal to 1, yes it is true, then you call abc function, yes, then you call abc function। और अगर यहाँ अब हमने abc function, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपके abc की डेफिनेशन पर, ठीक है, abc की डेफिनेशन पर। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, थ्रो 0, फाइन। तो थ्रो 0 के बाद में अब ये क्या है, सो नाउ इट विल गो टू द कैच ब्लॉक, देन व्हाट इज रिटन हियर, एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, फाइन, ठीक है। इसलिए आपका ये क्या है, आपका आंसर क्या है, एक्सेप्शन इज हैंडल्ड। नाउ यू कैन से कि हमने तो यहाँ 3 बार, नाउ जस्ट अटेंशन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम गोइंग टू से, some of you may say कि हमने तो यहाँ पर 3 बार इस फंक्शन को कॉल किया है, ये तो 3 बार यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, और या मैं इसको यहाँ इधर if I say if x is equal to 1 or x is equal to
0 also, then it should work, right? So ऐसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब भी मैंने एक टेस्ट फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट दिया 1, so it will get compared or with this 1 or 0. Now in ABC you are throwing one value. अब जब भी, अब इसका मतलब क्या है कि टाइम में you have gone through the throw value, है ना, थ्रो 0 आप उस तक पहुंच गए हो। एंड थ्रो का काम क्या होता है, थ्रो का काम क्या होता है, इट विल लुक फॉर द कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक कहाँ पड़ा है, इस ट्राई के बाद में। तो क्या होगा, इट विल नाउ कंट्रोल कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ कैच ब्लॉक में। और उसके बाद में कौन सी लाइन है, उसके बाद में हो सकता है 0 लिखा हो या कुछ और मैसेज प्रिंट किया हो, that will get executed. Now it will not go back again in the try block. ठीक है, yes or no, it will not go back again in the try block. ये आपका इसमें इसका है। ओके अच्छा, कई बार क्या होता है, जो हमने यहाँ पर एक टेस्ट नाम का यहाँ फंक्शन ये लिखा है, ओके तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक और न्यू ले लेती हूँ। So let us suppose I am considering this test block, right? इसके बाद में हमारे पास में catch block भी था, just wait. ये जो लास्ट वाला हमारा एक प्रोग्राम था ना, जिसमें मैंने x is equal to 1 and 0 ऐसा भी कर दिया था, so इसका ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। So this is the solution, right? It will not go for test another test functions to get called. अच्छा तो मैं अब ये वाला आपको समझा रही थी, एक मिनट। So now sometimes in my program what I have to do, ये try block हुआ यहाँ, और ये catch block, और ये function बंद, ठीक है। ये मेरे पास में टेस्ट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक है। अच्छा हमने अब क्या देखा, ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक मेन फंक्शन के अंदर तो हो ही सकता है, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। ये देखिए मेन के अंदर क्या है, ट्राई एंड कैच। ये हमने सारी एग्जांपल्स पहले ऐसे करी थी। बट क्या है, एक फंक्शन के अंदर भी ट्राई एंड कैच ब्लॉक हो सकता है, बट दैट हैज टू बी, वो भी वहां इकट्ठे ही होना चाहिए। बट हमने ये देखा कि हम थ्रो कीवर्ड को कहीं आगे किसी और फंक्शन में या कहीं और आगे नेस्टेड फंक्शन में हम रख सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। हमने एक ये थ्रो कीवर्ड को वी हैव केप्ट इन द नेस्टेड फंक्शन। अच्छा तो समटाइम्स व्हेन आई एम डीलिंग विद अ फंक्शन, now this function can throw integer value, it can throw character value also, or it can throw double value also. But I want to restrict this function, I want to restrict this function that it should throw only integer as well as character value. ठीक है, मैं चाहे आपने खूब सारा यहाँ पर थ्रो लिख दिया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस, बट अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, that specifically it should throw, it has the capability to throw only integer as well as character. आप उसको उन डेटा टाइप्स को ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपने int लिया है and char लिया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर वो हर तरह की, कोई भी तरह की एक्सेप्शन को थ्रो कर लेगा, राइट, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे ये थ्रो, if you do not want to restrict, then this kind of try block and sorry, this kind of function can throw any type of exception. But if you want to restrict this function specifically to throw only this kind of exception like integer and character, और मैंने यहाँ जैसे ये डबल का दिया है, और मैं चाहती हूँ कि चाहे आपके प्रोग्राम में कहीं, मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं पर ये थ्रो किया भी है, बट दिस फंक्शन शुड नॉट थ्रो डबल वैल्यू, डबल एक्सेप्शन, तो फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बट इट कैन थ्रो इंटीजर टाइप ऑफ एक्सेप्शन एज वेल एज करेक्टर टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको मैं करने के लिए एक मिनट, इसको मैं सेव करती हूँ पहले, और यहाँ से मैं लेती हूँ। अब इस फंक्शन को मैं फिर से इधर कॉल मेन के अंदर, ठीक है, एंड देन वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इट कैन थ्रो। तो टेस्ट नाम का फंक्शन है,
सो टेस्ट और साथ में अगर मैं 0 लिखती हूँ, then again it will work. If x is equal to 0, then it will throw this kind of exception. और मैं दूसरा क्या करती हूँ, टेस्ट एंड मैं -1 लिख देती हूँ, क्योंकि जो -1 का केस है, जो -1 का केस है उसके लिए क्या है, 1.1 वैल्यूज थ्रोन, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि किस टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन बाय द थ्रो कीवर्ड, राइट। तो किस तरह का एक्सेप्शन वो थ्रो कर रहा है, एंड देन यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट function to throw this kind of exception, then we can use this exception specification. इसको हम exception specification बोलते हैं। मैंने इसको सेव किया एंड रन किया। तो पहले केस में क्या होगा, टेस्ट 0, so I'm calling this function with argument 0. So what happens, this x is 0 and यहाँ 0 is equal to 0 and this is the character exception, so that will be it. Now this function can throw this kind of exception and catch block क्या करेगा, int एक्सेप्शन कॉट। वहां तो आप जो भी आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, फॉर द नेक्स्ट फंक्शन कॉल, फॉर द नेक्स्ट फंक्शन कॉल, अब ये मेन के अंदर है तो ऑब्वियसली दूसरा फंक्शन कॉल भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सो हेयर इट इज रिटन टेस्ट -1, सो इफ दिस x is -1, तो यहाँ पर क्या है, -1 is equal to -1 and then it is throwing 1.1, okay, but this here you have restricted this function not to throw this int and char, yes। तो यहाँ पर हमारे पास में एक मिनट, इसकी एग्जांपल यहाँ इसमें अगेन ये जो थ्रो है, अदरवाइज इट हैज टू बी कैच डिफरेंट होगा, 1 मिनट। ये आपका ट्राई एंड भी यहाँ है, हाँ, ओनली देन इट इज पॉसिबल। यहाँ जो हमने जब यहाँ पर एक्सेप्शन लगाई है इस एग्जांपल में, ये तो हमारे पास में ट्राई एंड कैच इज इनसाइड द फंक्शन, राइट। तो अगर इनसाइड द फंक्शन आपके पास में ये है, यहाँ पर इनसाइड द फंक्शन दिस इज कॉट बाय द कैच ब्लॉक जो कि इनसाइड द फंक्शन है, राइट। बट अगर आपको थ्रो कर, मतलब यू आर थ्रू फ्रॉम द फंक्शन टू द मेन फंक्शन, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले ये वाला मेरे को इधर लगाना पड़ेगा, एक मिनट, इसमें लगाना पड़ेगा, नो इसके अंदर, वेट, ये सारा ट्राई ब्लॉक अब यहाँ इधर से हटेगा और ट्राई जो आएगा वो इसके अंदर आएगा। ट्राई will have these functions as the definition and then catch block जो होगा वो आपको यही इसके अंदर होगा, मेन के अंदर, ठीक है, एंड देन नाउ इट कैन गेट एग्जीक्यूटेड। तो अब क्या होगा आपके पास में, नाउ दिस फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। देखो पहले वाली अभी जो एग्जांपल में उसमें दिस वाज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज जो भी आप एक फंक्शन के अंदर ट्राई और कैच लगा रहे हो तो वही तो हो रहा है अंदर ही उस ब्लॉक के अंदर, इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर, और वहां पर ही वो कैच भी हो रहा है एक्सेप्शन, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इट वाज वर्किंग प्रॉपरली, मींस वो दोनों ही हर तरह के एक्सेप्शन इट वाज बीइंग कॉट। बट इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन तो सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शन आप थ्रो के ऊपर लगा सकते हो, राइट। दैट रिस्ट्रिक्शन कैन बी रिटन कैन बी केप्ट ऑन द थ्रो कीवर्ड, क्योंकि ट्राई और कैच तो यहाँ पर इकट्ठे ही होंगे। अगर आप उसको डायरेक्टली फंक्शन में रखेंगे तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, तो दैट इज ऑफ नो यूज बिकॉज दैट एक्सेप्शन विल बी कॉट, वो बाहर ही नहीं जा रहा है इस फंक्शन से विद दिस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वहां तो आपका सोल्यूशन अंदर ही उस ब्लॉक के अंदर आप यू हैव गॉट द सोल्यूशन विद द कैच ब्लॉक, विद इन द कैच ब्लॉक। सो व्हेन यू आर थ्रोइंग दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम द फंक्शन, और आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक कहाँ पर है, मेन के अंदर। यहाँ ट्राई में मैंने क्या किया, टेस्ट 0 के साथ में हमारे पास में क्या होगा, this 0 and throw when 0 is equal to 0 it will throw character value, तो यहाँ it is possible to throw the character value। let us suppose now I restrict, anyways -1 जो है हमने यहाँ लिखा है, इसको मैं हटाती हूँ। now if this test -1 is there, yes, अब इस फंक्शन में क्या है, -1 is the argument, -1, this x will be -1,
So -1 is equal to -1. So this throw will throw 1.1 value. Yes, this is double value. But यहाँ इस throw जब ये एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, ये एक्सेप्शन बाहर जाने के लिए we have one restriction here, right? This is called exception specification. यहाँ हमने इस throw word को restrict कर दिया है कि आप सिर्फ int और char वाले exceptions को throw कर सकते हो. That is why here an exception has occurred. What terminate called after throwing an instance of double. आपने डबल को यहाँ एक्सेप्शन आई है, बट आपने उसको you are not able to catch that exception. Why? Because we have restricted our function to catch only, to throw at least only integer and character. जिस चीज को आप throw करोगे, only that will be caught and then solution will be given to for that exception in your program. आप उसको यहाँ से throw ही नहीं कर रहे हैं. Even if you are throwing it, but आपने एक restriction लगा दी है that this kind of value cannot be thrown from this function. तो यहाँ पर वो catch block भी इसके लिए नहीं चलेगा, इसीलिए वो error आ गई थी. ठीक है? This kind of exception was there. अगर कोई question है आपको तो पूछिए. So this ends with the ये वाला exception handling.